Hello everyone and welcome back to my channel Easy English with Sneha. Hope guys you are enjoying my videos and learning as well. लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया था वो टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं. लेट्स मूव फर्दर टू माय नेक्स्ट टॉपिक. Already discussed in my previous video that today's topic will be has been, have been and had been. So for today's grammar lesson we are going to be talking about has, have and had been. In this lesson I am going to clarify how to use them and when to use them. Quickly before I want to start it, I would like to thank you guys for liking my previous videos, and also if you want to watch my next and coming videos and you find them helpful, please don't forget to subscribe. Let's get started with the lesson. Firstly, let's talk about the basics. Have and had, as we already know, these are used for perfect tenses. Firstly, we'll discuss for the present tense. I, we, you, they or any plural noun we use have. He, she, it or any singular noun we use has. Let's discuss further. For have been, we can say like I have been, you have been, they have been, children have been, because they are the plural noun. On the other hand, for the singular noun, we may say he has been, it has been, she has been, like that. Firstly, we will discuss has been and have been, and afterwards we will discuss about had been. Let's check out the rules for using has and have been. The first rule is when we discuss any travel schedule. Yes, for any travel schedule we use has, have and had been. So likewise, see the example like I have been to London many times. That means I have visited London many times. This is talking about my travel plans, my travel experience. Whenever there is a thing discuss about the travel, we have to use has, have been. Okay. Second example, she has been to Italy 3 times. It means she has visited Italy 3 times. That's why we have used has been, because it's a singular noun. Rule number 2, इसको बहुत ही ध्यान से and carefully समझना. This is not very tough, but ये बहुत ही बेसिक चीज़ है that you must know. जब कभी भी कोई काम हम शुरू करते हैं that is been started in the past और वो अभी भी चल रहा है, it is on the continuation, वो अभी भी चल रहा है या जस्ट अभी अभी ही ख़त्म हुआ है, तब भी हम हैज़, हैव बीन का यूज़ करते हैं. के लिए रूल नंबर 2 में ही कुछ एड ऑन्स हैं. जब कभी हमें टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्पेसिफिक टाइम. हम केवल कार्य की अवधि के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कितने समय से वो काम चल रहा है, बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट कि कितने स्पेसिफिक वो टाइम क्या है जब से वो काम शुरू हुआ है. तब हम वहाँ यूज़ करते हैं फॉर का. और जब कोई काम हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि हम ये काम सुबह से कर रहे हैं या फिर 3 बजे से कर रहे हैं या फिर मंडे से कर रहे हैं, हमने एक परफेक्ट स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, ये काम हमने कब शुरू किया था, हम ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं सिंस का, जो कि आपको अच्छी तरह से क्लियर करने में हेल्प करेगा. हम देखेंगे एग्जाम्पल्स फॉर. से वो टेलीविज़न देख रहा है. ही हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 2 hours. 15 दिनों से छुट्टी पर है. ही हैज़ बीन ऑन लीव फॉर 15 days, बिकॉज 15 days
2 घंटे, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। नाउ लेट्स चेक आउट एग्जाम्पल्स फॉर सिंस। अब हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स सिंस के। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। He has been studying since morning. वह मंडे से खेल रहा है। He has been playing since Monday. मंडे और मॉर्निंग, हमको पता है कि काम कब शुरू हुआ है और सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि वो काम कब से चल रहा होगा। अगर ये दोपहर है तो ऑफ कोर्स वो सुबह से दोपहर तक खेल रहा है। अगर आज ट्यूसडे है तो ये काम मंडे से ट्यूसडे 2 दिन चला है। तो अगर हमको सिर्फ अपना स्पेसिफिक टाइम बता के सामने वाला हमारे ड्यूरेशन को, काम कब से चल रहा है, खुद पे खुद समझ लेता है, तब हमको वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल गाइस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है और थोड़ी सी अपनी हैबिट में इनको यूज़ करना है, सो दैट ये टाइम टू टाइम आपके मदर टंग की तरह, जैसे आप खुद ब खुद हिंदी में बात करने लगते हैं वैसे इंग्लिश में भी करने लगेंगे। और इसके लिए थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा, अपने नोट्स को प्रिपेयर रखना पड़ेगा और अब मेरे वीडियोस को आपको एक कंटिन्यूएशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रामर के रूल्स बताती जा रही हूँ। सो गाइस प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो। आपको अगर अपने ग्रामर को परफेक्ट करना है तो दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, इसमें भी हैं, तो लेट्स चेक आउट कि इसके कुछ एक्सेप्शनल्स कैसे हो सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में हम अपने बहुत ही कंफर्टेबल जोन में होते हैं और हम बहुत आराम से कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिनको कई बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हाल फ़िलहाल में मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ ही टाइम से मैंने ये काम किया है, बहुत लंबे अरसे से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इनकी इंग्लिश क्या होती है? लेट्स चेक आउट। कि हाल फ़िलहाल में मैंने ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है हर रोज़। हाल फ़िलहाल की इंग्लिश होती है लेटली। लेटली दैट मीन्स हाल फ़िलहाल। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? लेटली आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम एवरी डे। इसका ये है कि बहुत ही कम टाइम हुआ है मुझे इसको देखते हुए, मतलब मैंने 2-3 ही एपिसोड्स देखे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको देखा है, मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने ये प्रोग्राम देखा है, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि कुछ समय से देख रहा हूँ। मतलब जो हमने कुछ समय से बोला वो हाल फ़िलहाल से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैंने बिल्कुल ही इसको एक लंबे समय से देख रहा हूँ, नहीं, मैंने कुछ समय से इसे देखना शुरू किया है। तो वहाँ पे यूज़ आएगा अ वाइल का। I have been watching this program for a while, जो कि एक ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज़ किया है। अ वाइल बता रहा है कि कितने कुछ कम समय से मैंने इसको देखना शुरू किया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने इसको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, हो गया है मुझे काफ़ी टाइम, तो मैंने मोस्टली इसके सारे एपिसोड्स देखे हैं, तब हम यूज़ करते हैं अ लॉन्ग टाइम। I have been watching this program for a long time. Have been बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये ग्रामर के रूल मैंने आपको बता दिए हैं, बस आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। मैंने खुद बोला है आपको कि मैं अपने नोट्स हैंडी रखती हूँ। आप जब भी मेरा वीडियो देखिए प्लीज़ नोट्स को हैंडी ज़रूर रखिए। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज़ नोट डाउन करिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करिए, आपको चुटकियों में इंग्लिश बोलना आ जाएगा। गाइस आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हैड बीन का। हैड बीन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। मीन्स चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही शी इट हो, हमें हैड बीन का ही यूज़ करना है। सो दैट्स वेरी सिंपल। एंड फॉर के जो रूल्स मैंने आपको पीछे डिस्कस किए हैं, सेम रूल हैड बीन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है डिफरेंट है, वो ये कि ये पास्ट टेंसेस में यूज़ होता है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहे थे हैज़ एंड हैव बीन, और ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। बाकी सारे रूल्स बिल्कुल सेम है। थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ।
जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया और दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो हम यूज़ करते हैं हैड बीन। जैसे कि मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई वहाँ पे ही ख़त्म हो गई, उसके बाद शायद मैं खेलने चला गया, मैं कुछ और करने चला गया, मतलब वो काम मैंने पास्ट में किया, अभी तो मैं कुछ और कर रही हूँ, तो वहाँ पे हैड बीन का यूज़ होगा। मैं बोलूँ कि वो 2 बजे से फ़ोन पे बात कर रहा था, अभी तो 3 बज रहे हैं, उसने 2 बजे बात कर ली है, तो वो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है। देन वी विल यूज़ हैड बीन। सो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ही हैड बीन टॉकिंग ऑन फ़ोन सिंस 2 o'clock। तो इससे हैड बीन हमने लगा दिया, हम यहाँ हैज़ बीन भी लगा सकते थे, पर हमको जब पता है कि वो काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने हैड बीन का यूज़ किया है। लेकिन अगर अभी भी वो कर रहा होता तो मैं कहती कि 2 बजे से बात कर रहा है, 3 बज गए हैं, तब हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करते। तो अभी तुमको पता है कि वो पास्ट में बात हो चुकी है, देन वी हैव यूज्ड हैड बीन। थोड़ा सा ट्रिकी है पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर आपको आ जाएगा। सो गाइस, आपने देखा कि ग्रामर बहुत ही सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ ग्रामर्स, बट अगर आप उसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली मेहनत आपको ही करनी है। हम तो आपको सिखा देंगे, बट आपको ही मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने लैंग्वेज में इसको डेली कुछ टाइम निकाल के इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो गाइस, मैं अपने वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको 3-4 वीडियोस ना देखने पड़े, मेरे ही वीडियो में आपको मोस्ट ऑफ़ द डाउट्स क्लियर हो जाए। गाइस, मैं आपको ये ग्रामर सेक्शन, जो भी आपको मेरा ये ग्रामर सेशन चल रहा है, इसमें आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा ताकि आपको एक बार ग्रामर क्लियर हो जाए। तब मैं नेक्स्ट आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी तो जब मैं टेंस पढ़ाऊँगी तो वो आपकी पिछली चीज़ें सारी रिवाइज़ हो जाएंगी। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं पहले छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करूँगी, उसके बाद टेंस के ऊपर आऊँगी। जो भी हमारे टेंस होते हैं वो थोड़ी सी टेंशन तो हमें दे ही देते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे क्लास में आपको टेंशन हो, इसलिए मैंने इसका अलग तरीका ढूंढा है। टेंसेस क्लियर करने के बाद हम थोड़ा वोकैबुलरी पार्ट में आएंगे, हम अपने एक्सेंट पार्ट की तरफ भी जाएंगे और उसके बाद हम आगे की और भी एक्सरसाइज करेंगे कि जैसे कि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। हम कॉन्वर्जेशन क्लासेस भी करेंगे, हम कुछ फोनेटिक्स, कुछ तरह की प्रोनाउंसिएशन क्लासेस भी करेंगे। उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को भी मैं बुलाऊंगी अपने शो पे और वहाँ पे मैं वो उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। आपको धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी ऑब्स्टेकल्स और जितने भी चीज़ें हैं जो कि लोगों को बहुत बर्डन लगती हैं, वो सीख नहीं पाते हैं गाइस, मेरे वीडियो में वो आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए तो ये जस्ट लाइक प्रेसिंग ऑफ बटन है, बट हम यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज दे रहे हैं वो उसका कंपैरिजन तो कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज़ एजुकेशन और जो भी नॉलेज है उसको तो आप किसी चीज़ से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा आपको अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँगी गाइस। हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेट्स सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।